So we have discussed enough about file handling, text file, binary files, CSV files, pickle module, and some basic questions also. Now let us understand few important things. Few important concepts. First is how to open a file so that there is no need of closing it. What is the meaning of this? I want that I should open a file in which if I forgot also the closing of file, then it should automatically close. It should automatically close the file. हम चाहते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन कि जिसमें मैं फाइल को ओपन करूं और क्लोज मुझे ना करनी पड़े, क्लोज मुझे ना करनी पड़े, अपने आप सिस्टम खुद ब खुद क्लोज कर दे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? with keyword is used with keyword is used before open function followed by file handle name. Now there is no need of remembering or cramming up this thing. इसे आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Just the syntax. Understand it. Syntax of it very easy. With after that open function, in this same thing, the syntax of open will remain same. What is that? File path, comma mode. फिर आएगा as keyword आएगा and then file handle object, file handle का name, फिर colon, फिर अपने पास में colon. Now it will create a group of it will create a block. ये क्या करेगा? सारी स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में डाल देगा. अब कॉलन का एक और यूज आ गया. विद कीवर्ड आफ्टर दैट ओपन फंक्शन, फाइल पाथ कॉमा मोड, रीड राइट बाइनरी, रीड राइट और अपेंड कौन सा करना है अपन को, फिर एज कीवर्ड एंड देन फाइल हैंडल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट आई वांट टू ओपन दिस फंक्शन, sorry, I want to use this open function to open this file in this mode, and remote controller of this file will be file handle. That means open function will return the control to file handle only, the control to file handle only. बस ये with कीवर्ड का फायदा क्या है? अब ये सारे स्टेटमेंट्स ब्लॉक के अंदर आएंगे, ब्लॉक में विद इंडेंटेशन. यू ऑल नो कि whenever we write something in block, all are indented. सारे स्टेटमेंट्स ब्लॉक आएंगे. अब जैसे ही ये ब्लॉक फिनिश होगा, फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी. जैसे ही ये ब्लॉक फिनिश होगा, फाइल विल बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली. आई विल शो यू हाउ कैन वी चेक वेदर फाइल इज क्लोज्ड और नॉट. नाउ file will be closed automatically as soon as we move out of the block. जैसे ही हम आउट ऑफ द ब्लॉक निकलते हैं तो फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी. ठीक है, लेट मी शो यू एग्जांपल. एंड हाउ कैन वी चेक कि फाइल क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है? उसके लिए अपन कुछ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे. यू विल अंडरस्टैंड नाउ. एग्जांपल, सपोज विद ओपन, I want to open this file abc.txt, comma R mode as F1. Very easy. And now whatever you want you can do. Suppose let me write a program for reading the content. C equals to F1 dot read and print C. That's it. तो अगर अपन भूल जाते हैं फाइल को क्लोज करना तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. और वैसे भी लाइन बचेगी अपनी. विद ऑप्शन में हमेशा स्टेटमेंट्स डाल दो तो फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी. ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट इट and let me show you how can we see whether the file is closed or open, whether a file which we have processed, is it still opened or closed. Okay, so let me write here with program 1 save. Fine. तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? वैसे ही फाइल ओपन करते हैं. F1 equals to open abc.txt. Let me open in write mode.
फाइन. प्रिंट स्टेटस ऑफ फाइल. अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में. f1 dot closed. I will discuss this status, don't worry about it. This attribute I will be discussing with you. Let's run it. देखो एक बार. First of all, I have just opened the file in write mode. File बन गई होगी. This is one of the attribute. This is one of the attribute of the file closed. What it returns? It returns true or false. It returns true or false. F1 dot closed. You are asking whether the controller which is pointing to the file is closed or not. If it is closed, then it will return true. If it is not closed, it will return false. ये return करेगा false अगर close नहीं हुई है. Close हो गई तो return क्या करेगा? True. Now after this line, I have executed f1 dot close function. Now I am trying to see status of file. f1 dot close true. ये फाइल अपनी क्लोज हो चुकी है. ये अपनी फाइल क्लोज हो चुकी है. अब देखो फाइल क्लोज होने के बाद में डेटा राइट कर सकते हो क्या आप? लेट्स से फाइल क्लोज होने के बाद में डेटा अपन राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इट. सी नाउ एरर. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल. क्लोज्ड फाइल पे आपने राइट करने की कोशिश कैसे करी? यू कैन नॉट डू राइट ऑपरेशन ऑन ए क्लोज्ड फाइल. ठीक है. तो by using this function by using this attribute, this is the name of attribute which is present in this file handle closed. Name of attribute is closed. Let me write it here only. Just a minute. How can we check? फाइल के और भी होते हैं एट्रीब्यूट्स, मैं डिस्कस करूंगा. फाइल के एट्रीब्यूट्स अपने और भी होते हैं. फाइल एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट क्लोज्ड. It will tell the status of file whether it is closed or not. It will give true if file is closed, otherwise false. अगर फाइल क्लोज हो चुकी है तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू. और नहीं क्लोज हुई है तो क्या रिटर्न करता है अपने पास में? फॉल्स. लेट्स सी अगेन. मैं f1 डॉट क्लोज नहीं करता हूं, फिर यहां पर कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने. ओके, हेलो, वेलकम to file handling. Some message I have printed, and then status of file I'm just seeing whether after this status will remain, the file remains open or not. You can see status of file false, that means अभी open है वो, memory के अंदर data उसका है. फिर I have just printed one message. Again I am seeing the status of file whether it is still open or not. It's still open. It is not closed yet. ठीक है. This is the reason we have to close a file. हमें हमेशा फाइल क्लोज करनी पड़ती है, तो मुझे f1 डॉट क्लोज लिखना पड़ता है. तो रिटर्न करता है ट्रू या रिटर्न करता है अपने पास में फॉल्स. ठीक है. अब तुम चाहते हो कि फाइल का काम होते ही, सपोज नाउ आई नो दैट आफ्टर दिस लाइन आई विल नॉट बी यूजिंग एनी फाइल और दिस पर्टिकुलर abc.txt. सो बाय मिस्टेक भी, गलती से भी इस फाइल के अंदर डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए या डेटा खराब नहीं होना चाहिए. बट होगा क्या? अगर by mistake you have used f1 dot write and something else, then it will be rewriting the data in that file. ठीक है. तो how to prevent this thing? Very easy. With option use करो. With open abc.txt. कोई सी फाइल हो, फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी, CSV या this, we can use with option with every file. टेक्स्ट भी, बाइनरी पे भी और CSV पे भी, सब पे सेम काम करेगा. As f1 name of this I am handling. Thou simply c equals to f1 dot read. Suppose content read करने का प्रोग्राम है. It may or may not print. If the content is there, then it will print. Otherwise, it will not print. And now let's see the status of file. f1 dot closed.
status of file is f1 dot closed. See now, let's see this. Yes, so we have achieved that by using this you will be simply closing the file automatically. Once it is done, the file will be closed. Once it is done, the file will be closed automatically. Very very easy. ठीक है, तो फाइल अपने आप ही क्लोज अपना हो जाएगा. तो ये इसका फायदा था विद ऑप्शन का. फाइल विल बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली. तो आपको इसे यूज करना है, विद ऑप्शन का यूज करना बेटर रहेगा हमेशा. ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है विद ऑप्शन में, इतना सही कंसेप्ट है. नाउ फर्स्ट पॉइंट कर लिया, हाउ टू ओपन ए फाइल सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ क्लोजिंग इट. सेकंड, अब वी हैव सीन दैट जब अपन फाइल को ओपन करते हैं तो वी आर नॉट चेकिंग वेदर फाइल एग्जिस्ट और नॉट, कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस वी शुड ऑलवेज चेक. जब भी अपन प्रैक्टिकल सिचुएशन में है, रियल वर्ल्ड में है, तो हमें चेक करना चाहिए कि फाइल पे काम करने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. तो हाउ कैन वी डू दिस? वेरी इजी. ओके, हाउ टू चेक whether a file exists or not before opening it. Otherwise open function will give you runtime error, file not found error. तो या तो मैं exception handling करूं, try और accept में डालूं, या फिर पहले ही चेक कर लूं. तो how can we check it? Very easy. There is a function called is file. There is a function called is file inside OS modules. Inside OS module. Okay, no, not OS module. Inside path sub module of OS module. तो ना फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकते हैं, ऐसे ही मॉड्यूल के अंदर भी मॉड्यूल हो सकते हैं. तो OS मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है पाथ, उसके अंदर एक फंक्शन है इज फाइल. os डॉट पाथ डॉट इज फाइल. तो क्या होगा, इसका नेम क्या हो गया? सो इट विल बी accessed in this manner. os dot path dot is file. os dot path dot is file. os एक मॉड्यूल है, import os करोगे सिर्फ आप, import os. In the os module there is a sub module path inside which is file is a function. So os dot path dot is file. So this function returns true if file exists, otherwise false. Otherwise returns. But do remember, it will not check whether you have typed the correct drive name, correct folder. Only it will check the existence of file. So very important thing. Make sure to type proper drive name and folder name. Since it will not check, it will only check the existence of file. ठीक है, तो अगर आप रॉन्ग डालते हो ड्राइव नेम फोल्डर नेम, तो ऑफ कोर्स इट विल रिटर्न फॉल्स. ऑफ कोर्स इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, तो पूरा प्रॉपर पाथ सही होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. तो देखो सिंटेक्स इस फाइल नाम है फंक्शन का, एक्सेप्ट क्या करता है? फाइल पाथ इन डबल कोट्स आएगा, और सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग os dot path dot is file and file path. os dot path dot is file. Okay, let me give you
तो इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स वी कैन यूज इट इनसाइड इफ एल्स। हम अपना आराम से इसे इफ में यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सपोज मुझे क्या काम करना है, इफ पहले इंपोर्ट, मुझे एक फाइल में रीड करना था, फाइल रीडिंग ऑपरेशन, बट वी नो फाइल रीडिंग ऑपरेशन मीन्स दैट फाइल मस्ट एग्जिस्ट, वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इफ os डॉट path डॉट is फाइल, इन दैट आई एम जस्ट राइटिंग abc डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एंड दैट्स इट। नाउ आफ्टर दिस ये फंक्शन कॉल होगा पहले, या तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अगर ट्रू आता है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स आता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहां तो मैंने क्या लिखा, फाइल एग्जिस्ट, सिर्फ एक मैसेज डाल दिया, जस्ट ए डेमो क्वेश्चन, फाइल एग्जिस्ट, और एल्स में क्या डाल दिया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम हो गया फाइल चेक करने का कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्विक क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम, write a program to check whether a file exists or not using is file function, ठीक है। तो देखो यही वाला करते हैं क्वेश्चन, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, ओके। सो लेट्स डू इट नाउ। इफ पहले इंपोर्ट os, if os dot path dot is file, let's say abcd dot text, you can write complete path also। अभी ये कहाँ चेक करेगा, करंट डायरेक्टरी में, करंट ड्राइव में जहाँ प्रोग्राम स्टोर है, प्रोग्राम कहाँ स्टोर है, डेस्कटॉप पे पाइथन फोल्डर के अंदर। लेट मी राइट हियर फाइल एग्जिस्ट, नाउ वी विल बी मॉडिफाइंग आर ऑल प्रोग्राम्स बाय दिस, एल्स के अंदर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, okay, so now let's save it, let's run it, see file exists, abcd dot text, just a minute, let me write something different, abcd123 does not exist, okay। You can see if the file will exist then it will return true, तो अपने आप if execute हो जाएगा, and if file is not there then it will be going to execute the else part, ये क्या करेगा, else part हमेशा execute करेगा, ठीक है। तो always remember you should check first, हमेशा आपको चेक करनी चाहिए। क्या होगा अगर आप चेक नहीं करते हैं, देखो अगर अब मैं नहीं डालता हूँ ये सब चीज़ें, मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, लेट मी ओपन डायरेक्टली abcd123 डॉट टेक्स्ट, देखा है आप लोगों ने, अगर मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ फिर यहाँ लेट मी ट्राई टू राइट f1 डॉट रीड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग ऑपरेशन, whether the operation will be done or not, because we don't know about the file which we want to open। See this now, yes, error, file not found error, no such file or directory, ऐसी कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। तो दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज चेक। तो अब देखो इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कैसे करें, बेस्ट क्या रहेगा, पहले चेक करो इफ os डॉट path डॉट is file, always remember we should always do this, और ये लिख दो यहाँ पर abcd123 ताकि एरर ना आए प्रोग्राम में अपना। इट्स जस्ट लाइक सपोज यू हैव क्रिएटेड वन सॉफ्टवेयर एंड इन सम सिचुएशन योर सॉफ्टवेयर इज क्रैश्ड, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए, वो एरर की हैंडलिंग उसमें होनी चाहिए। देखो अब इतना काम हो जाएगा। इवन यू कैन यूज विद ऑप्शन हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी आप विद ऑप्शन यूज कर सकते हो, दिखाऊंगा आपको मैं। एल्स फाइल कैन नॉट बी, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रन करते हैं। ओके जस्ट ए मिनट, ओके सॉरी बाय मिस्टेक दिस आई हैव रिटन, यस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब भी कोई काम करते हो आप फाइल के ऊपर, तो सबसे पहले आपको ये कर लेना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर os डॉट path डॉट is फाइल, जो भी आप कर रहे हो उसमें अपन
फाइल को चेक करना चाहिए. यू कैन टाइप द दिस ऑल्सो. सपोज ई ड्राइव के अंदर लेट मी से पाइथन // ऐसा कुछ है. ई ड्राइव में पाइथन फोल्डर के अंदर ABCD 1 2 3 टेक्स्ट. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ, बट स्लैश आने चाहिए अपने पास 2. लेट्स रन इट. फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. या तो पाइथन फोल्डर ही नहीं है ई ड्राइव में. लेट मी सी whether E drive is having Python folder or not. P. No, there is no Python folder in E drive. Okay, so that's what you should always check first before starting or before doing any kind of operations on a file. ठीक है, ये हो गया अपने पास में. Now next देखते हैं. Same thing we can do by exception handling also. One more solution. बस वो फंक्शन है. एक्सेप्शन हैंडलिंग से बहुत सारे काम होते हैं, ये फंक्शन सिर्फ फाइल के लिए बना है. एक्सेप्शन हैंडलिंग से अपन वो याद करो EOF एरर जो आया था वाइल डूइंग बाइनरी फाइल ऑपरेशन. हम जब बाइनरी फाइल से डेटा रीड कर रहे थे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने वहां पर काम लिया था. वी कैन ऑल्सो यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग टू चेक वेदर फाइल एग्जिस्ट और नॉट. कैसे? वेरी सिंपल. ट्राई just open the file inside try block and inside accept block we can give some error message. कैसे देखो? try colon write it here f1 equals to open, same thing abcd 1 2 3 dot text comma read mode. बाकी जो भी आपको काम करना है, सपोज c equals to f1 dot read print c f1 dot close. We can use this with option here except. अब मैंने कहा था एक्सेप्ट के बाद में एरर का नेम आता है. इफ यू नो द नेम ऑफ एरर एंड नेम ऑफ एरर is case sensitive. Name of error is case sensitive. You can see the name of error from here. Suppose that I am just not using this. I want to see the name of error. So simply it will show you the name of error. It is case sensitive. See this error. File not found error. Every word first character is in capital. This is the naming convention of errors in Python. File not found error. You can copy this and write it after accept. Write it after accept and colon. ठीक है. Print file does not exist. Why I've written this? Let me tell you why I'm writing this. File does not exist. If you want to handle multiple errors, then you can write one more except. Suppose EOF error. EOF error. If you want to handle this also, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? End of file. Let me just execute this for you. End of file reached. How to handle multiple errors. ये वाला अगर accept आता है, that means आपका फाइल प्रेजेंट नहीं है. Your file is not present. ये वाली अगर एरर आ रही है तो आप कहाँ पहुंच चुके हो? एंड ऑफ फाइल पे. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड if you are not writing these two, let me tell you, if you are not writing these two, you are simply writing this blank and then just giving the message. अब क्या होगा? कैसे भी टाइप का एक्सेप्शन आता है, any kind of exception if occurs, if any kind of exception occurs, then it will give single message only. It will give single message. Let me tell you very very good examples. You will understand the importance of this exception handling now also. देखो हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर इनपुट करवाते हैं और देखते हैं क्या होगा अगर यूजर इंटीजर नंबर इनपुट नहीं करता है तो कोई एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन. एंटर एनी इंटीजर. मैंने उसे बोला इंटीजर डालने के लिए,
तो अगर वो कोई गलत नंबर डालता है तो क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा? यू कैन हैंडल सच थिंग ऑल्सो। आप ये वाली चीजें भी एक्सेप्शन में डाल सकते हो। कैसे? सपोज इन योर प्रोजेक्ट यू माइट वांट दैट नंबर, द मोबाइल नंबर शुड बी इंटीजर ओनली, age should be integer only, and I don't want my software to be crashed or give errors when user is not typing proper thing. It should give proper message to user. You know that जब मैं गलत पासवर्ड डालता हूं तो वो सिस्टम क्लोज नहीं करता या फिर आपका ब्राउजर क्रैश नहीं होता। ब्राउजर क्या करता है आपको, इट गिव्स एरर, प्रॉपर एरर। तो दिस इज एरर हैंडलिंग। देखो, एनी इंटीजर, लेट मी टाइप इंटीजर, जस्ट ए मिनट, 12, 12 is coming, fine. It is working perfectly fine. Let me execute again. Let me type hello. देखो, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन देता है, ये स्टेटमेंट भी आपको एक्सेप्शन देती है। सेम थिंग, लेट मी टाइप न्यूमेरिकल इंस्टेड ऑफ दिस 6.7, अगेन वैल्यू एरर। तो दिस काइंड ऑफ एरर ऑल्सो यू कैन हैंडल बाय ट्राई एंड एक्सेप्ट। देखो कैसे, बहुत ही सिंपल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने क्या करा, ट्राई, क्या लिखा, प्लीज एंटर एनी इंटीजर। अगर करता है तो रन करेगा। एक्सेप्ट में क्या करो, यू नो दैट वैल्यू एरर आ रहा है, यू शुड टाइप दैट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, प्रिंट, टाइप ओनली इंटीजर। अब आपका एरर नहीं आएगा, प्लीज टाइप ओनली इंटीजर। देखो, नाउ लेट्स रन इट, हेलो, देयर वी गो, प्लीज टाइप ओनली इंटीजर। नाउ प्रोग्राम इज नॉट थ्रोइंग एनी एरर, प्रोग्राम इज नॉट थ्रोइंग एनी एरर। ठीक है, प्लीज टाइप ओनली, दिस इज द अमेजिंगनेस। ठीक है, लेट मी टाइप 6.7 अगेन, प्लीज टाइप ओनली इंटीजर। तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंड आई डोंट वांट दिस शुड कंटेन एनी काइंड ऑफ अदर सिंबल्स, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, बहुत चीजें जो आपको करनी होगी आगे। इवन यू कैन अप्लाई सच थिंग कि अगर वो 10 डिजिट से ऊपर डालता है तो फिर मुझे चेकिंग करनी है, तो वो सब अपन कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन सी दिस इज ओके। लेट मी राइट समथिंग रॉन्ग, मैंने 9-1 लगा दिया आगे, जबकि ये अलाउड नहीं है लगाना। प्लीज जस्ट प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने अगर +91 आगे लगा दिया कंट्री कोड, जबकि ये अलाउड नहीं था। प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू सी रन टाइम एरर्स, यू कैन हैंडल सच एरर्स बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी इजी। और अगर तुम्हें एरर का नाम याद नहीं है, एरर का नाम अगर नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दो। नाउ इट विल बिकम ए जनरल, इट विल बिकम ए जनरल पर्पस एरर हैंडलर। कैसा भी एरर आएगा वहां उसे हैंडल कर लेगा। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसी एग्जाम्पल में, फाइल वाला भी खोल के, सेम एग्जाम्पल में मैं सेम के अंदर फाइल भी ओपन कर रहा हूँ, देखना आप क्या होगा। abcd123.txt, you will understand by this example। फिर यहाँ पर मैंने r equals to f1.read, this is one of the most important topic, and f1.close। ठीक है, now we know that यहाँ पर भी एरर आ सकता है इस लाइन में, और यहाँ भी आ सकता है एरर, बट मैंने क्या करा, ओनली एक्सेप्ट लिखा है, दैट मीन्स जनरल, जनरल ओनली सिंगल एक्सेप्ट। तो इफ एरर विल कम फ्रॉम दिस line, then also it will print please enter valid mobile number, and if error comes from this line, then also it will print please enter valid mobile number। let's see now, let's run it। मैं मोबाइल नंबर सही टाइप करूंगा, मोबाइल नंबर सही टाइप करता हूं, ओके, जस्ट ए मिनट, इट्स सेइंग प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। सी नाउ, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर प्रिंट हो गया, मतलब एरर यहां से नहीं आया। पता कैसे चला मुझे एरर यहां से नहीं आया, क्योंकि अगर एरर इस लाइन से आता, then this will not going to execute next line। always remember, whenever error comes from any of the line, it will not allow the next line to run or execute। ठीक है, it is executed because it's printed। now from this line error is coming, so you are not able to understand because you are giving same message, please enter valid mobile number। तो या तो आप यहाँ ऐसा लिखो,
error, error in file handling, errors are there. But now you will not be able to understand कि error कहाँ से आया था. You will not be able to understand mobile number. देखो errors are there. So that is the reason you should handle each error separately. अब मुझे पता है यहाँ पर कौन कौन से एरर आएंगे. एक तो था वैल्यू एरर. वैल्यू एरर जब मैं गलत टाइप करूंगा. वैल्यू एरर, मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. ठीक है, मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. एक और एक्सेप्ट. लेट मी टाइप हियर फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है, प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, लेट्स रन इट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एंटर रॉन्ग मोबाइल नंबर. ओके सॉरी, जस्ट ओके. हाँ ये तो ठीक है. प्लस का साइन देखो, प्लस का साइन आपने बीच में हाइफन नहीं डाला. प्लस तो एक पॉजिटिव सिंबल है. दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग इट एज ए पॉजिटिव नंबर. उसे वो क्या ले रहा है, एज ए पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट कर रहा है. लेट मी टाइप रॉन्ग मोबाइल नंबर. रॉन्ग मोबाइल नंबर, लेट मी जस्ट टाइप समथिंग लाइक स्ट्रिंग एंड ऑल. मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. नाउ सी, मोबाइल नंबर is wrong. That means from here only it has gone to the value error and then it is not executing any of the other statements. Mobile number is wrong. You know it now. Now let's mobile number type properly. File does not exist. File does not exist. ठीक है. Now let me type correct file. अब देखते हैं क्या होगा. सही टाइप करते हैं मोबाइल नंबर. फाइल में कुछ होगा नहीं. तो देखो कोई सा भी एक्सेप्शन नहीं आया. ना तो मोबाइल नंबर इज रॉन्ग, ना फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. दैट मीन्स इफ दिस कंप्लीट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, दे विल बी स्किप्ड. यहां से वो स्किप हो जाएगा, यहां से वो स्किप अपना हो जाएगा. ठीक है, एक चीज और करते हैं. आफ्टर क्लोजिंग लेट्स ट्राई टू रीड इट. आफ्टर क्लोजिंग अब देखते हैं कौन सा एरर आएगा. आफ्टर क्लोजिंग लेट्स ट्राई टू रीड इट. एंटर योर मोबाइल नंबर. सपोज मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. देखा वैल्यू एरर आया. That means by using this also value error is coming. By using this also value error is coming. If anything belongs to these two errors, अगर कोई भी error इनको belong करता होगा तो वो अपने आप मैच कर जाएगा, अपने आप मैच कर जाएगा. ठीक है, एक और देखते हैं. Let's try to open in write mode. Write mode में open करते हैं so that you will understand each and everything. Close करने के बाद write करते हैं और देखते हैं क्या same error आएगा. After closing, let's try to write something. Hello. Let's run it. पहले मोबाइल नंबर सही टाइप करते हैं. सपोज मैंने मोबाइल नंबर टाइप करा. ओके, टाइप्ड. मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. सी नाउ, मोबाइल नंबर इज रॉन्ग. दैट मीन्स वैल्यू एरर जनरेट हुआ है कहाँ से, F1 डॉट राइट से. वैल्यू एरर जनरेट हुआ है अपने पास F1 डॉट राइट से. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. अब एक चीज मान के चलो कि सपोज आपको सिर्फ एक ही एरर पता है, फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है, ये तो मैं स्पेसिफिक ले लूंगा. अब तुम्हें दूसरे एरर नहीं पता, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स राइट इट लाइक दिस. सम अदर एरर्स आर इन प्रोग्राम. Know all the errors, then it's not an issue. Let's run it. Enter your mobile number. See. So देखो हमने इससे क्या चीज सीखा. हमने इससे बहुत कुछ सीखा है. इफ यू नो स्पेसिफिक एरर्स, अगर तुम स्पेसिफिक एरर्स को हैंडल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू हैंडल स्पेसिफिक एरर्स, देन तो उन एरर्स के नाम लिख दो. एंड आफ्टर दैट इफ सम मोर एरर्स कैन हैपन इन योर प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में और भी एरर्स आ सकते हैं तो लास्ट में लिखना है इसको, लास्ट में ब्लैंक. अगर तुम इसे स्टार्टिंग में लिखोगे तो क्या होगा देखो. अगर तुम इसे स्टार्टिंग में लिखते हो तो एरर्स आएंगे. रन करते हैं.
देखो डिफॉल्ट एक्सेप्शन है ये क्या है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन। जैसे एल्स होता है ना, एल्स ऐसे ही लास्ट में आएगा। पहले सारे एक्सेप्शन जो पता है तुम्हें वो लिखो, और फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शन। दैट मीन्स if none of the exception is matched, let me write here one more exception. Sorry, value error. Okay, and let's type here wrong mobile number. Now by using this code, if this is the error will be generated, तो यहां पर थ्रो कर जाएगा, ये प्रिंट करेगा, बाहर निकल जाएगा। इफ एनी ऑफ द लाइन इज जनरेटिंग दिस एरर, तो यहाँ पे थ्रो कर जाएगा। ये एक तरीके से इफ एल्स ही है बेटा। देखो कैसे, अगर इस लाइन ने थ्रो करा वैल्यू एरर, तो इफ इक्वल्स टू फाइल नॉट फाउंड एरर, नो, इक्वल्स टू वैल्यू एरर, यस, यहाँ वाला वैल्यू एरर यहाँ जंप कर जाएगा, तो रॉन्ग मोबाइल नंबर। एंड इफ none of the statement is generating these two errors and something other than this is generated, अगर कोई और एरर जनरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, लास्ट में जाएगा, लास्ट वाले में। दिस इज डिफॉल्ट एक्सेप्ट। ये डिफॉल्ट है, जहां मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर अदर देन वैल्यू एरर एंड फाइल नॉट फाउंड एरर विल बी हैंडल्ड बाय दिस लास्ट ब्लॉक, विल बी हैंडल्ड बाय दिस लास्ट ब्लॉक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है अपन ने आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लास्ट एक्सेप्ट विल बी handling all such type of errors. It will handle all type of errors and specified errors will be handled by these two. Okay, so हमने जो प्रोग्राम किया था वो ये था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वी हैव डिस्कस दिस विद ऑप्शन, वी हैव डिस्कस दिस हाउ टू चेक वेदर ए फाइल एग्जिस्ट और नॉट बिफोर ओपनिंग इट, एंड इम्पोर्ट ओएस। ठीक है, रीड देखा अपन ने, एंड ये वाला। ओके